इस वीडियो में I'll solve a logical question, a reasoning type of question in which people sit in a circle. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डेटा के हिसाब से मूव करेंगे. सो हमारा पहला डेटा है 7 पर्सन्स A B C D E F and G आर सिटिंग इन अ सर्कल. तो उसके लिए हम पहले एक सर्कल बना लेंगे और इस पर 7 पॉइंट्स दे देंगे. अब हम क्या करने वाले हैं कि इन सभी पॉइंट्स को नाम देंगे, मतलब इन पॉइंट्स डिटरमाइन करेंगे कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, एंड सो ऑन. तो हमारा नेक्स्ट डेटा है 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल 2 ऑफ देम आर फेसिंग 5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to the center. So we'll use this data at the end. Let's move on to the next data. C sits third to the left of D and both are facing the center. So we'll start with D. So let's take this position to be D, and we have been given that D is facing the center. So D faces the center and this is D's left, this is D's right. और हमें कहा गया है कि C sits third to the left of D. So थर्ड लेफ्ट इधर ये हो गया और थर्ड ये पोजीशन हो गया. तो C is sitting here and even C is facing the center and this would be left, this would be right. अगले डेटा पे आते हैं. E is neither on immediate neighbor of D nor of C. तो E ना तो ये है, E ना तो ये है, क्योंकि दोनों D के इमीडिएट नेबर्स हैं. E ना तो ये है, E ना तो ये है, क्योंकि ये दोनों C के इमीडिएट नेबर्स हैं. तो मात्र पोजीशन जो बचा है E के लिए वो ये है, और हमें ये नहीं बताया गया है कि E किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. सो विल स्पेसिफाई दैट थिंग लेटर. And let's come to the next data. The one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center. So for this, we'll specify the position of F first. So can F be this? And the answer is no, because there's someone between D and F. F can't be this because this is occupied by E. F can't be this because there's one between D and F. F can't be this because this is C. This point is eligible to become F because there's one between D and F. F can't be this because there's no one between D and F. So F is this. And we have been given that one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center. So this point, the particular person who is sitting at this point is facing opposite to the center. So let's specify the left and right of this point, left, and this point's right. So हमारा अगला डेटा ये है कि G sits to right of G sits third to right of A and G sits right to third of so यहाँ पे मुझसे एक वर्ड मिस हो गया है, पर उसके लिए कोई बात नहीं. तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए G sits third to right of A and G is facing the center. So हमें कहा गया है कि जो G है वो A के राइट में थर्ड पे बैठता है. तो G sits third to right of A, और इसके लिए हम पहले A का पोजिशन स्पेसिफाई करेंगे. तो क्या ए ये हो सकता है? तो जो देखते हैं, ए के राइट में थर्ड 1 2 and 3, यहाँ पे जी बैठ सकता है, यहाँ पे ए बैठ सकता है. तो ये जो पॉइंट है ये ए बनने के लिए एलिजिबल है. हमारा पास ये अगला वेकेंट पॉइंट है जो ए बन सकता है, पर क्या ये सच में ए बनने के काबिल है वो हम देखेंगे. या तो अगर ये है तो जी ये होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डी बैठा हुआ है. या तो जी ये होगा, जो अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हमें कहा गया है कि जी इज़ फेसिंग द सेंटर. तो ये हमारा पॉइंट ए बनने के लिए एलिजिबल नहीं है. ये जो पॉइंट है अगर हम इसे मानते हैं ए, तो जी यहाँ बैठेगा जो पॉसिबल नहीं है, या तो जी यहाँ बैठेगा जो अगेन पॉसिबल नहीं है. तो ना ये neither of the points are eligible to become A. So only this point is eligible to become A. So this point is A. And this point is G. G is facing the center. This is G's left. This is G's right. We have got 6 points. Only one position is left. So we have got D. We have got A. We have got F. We have got C. We have got G. And we have got E. So only B is left and only one position is left. So this is B's position. Let's come to the last data. One of B's neighbor is facing opposite to the center. So B के दो neighbors हैं, एक D और एक E. So D जो है वो ऑलरेडी
सेंटर को फेस कर रहा है, जो एकमात्र नेबर बचा हुआ है वो है ई। तो जो ई है वो ऑपोजिट द सेंटर फेस कर रहा है। इसके भी लेफ्ट और राइट स्पेसिफाई कर देते हैं, तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। और अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो हमें कहा गया था कि 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर while 2 of them are facing opposite to the center। so हमें 2 मिल गए हैं जो सेंटर के ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। तो ये जो B होगा ये सेंटर को फेस करेगा। दिस वुड बी G's राइट, या दिस वुड बी G's राइट एंड दिस वुड बी G's लेफ्ट। सो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमें मिल चुका है कि ये कैसा डायग्राम होगा। इस डायग्राम का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट पर्सन्स फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। तो इसमें हम ऑप्शंस को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ए और ई जो है सेंटर के ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ए और ई। हमारे ऑप्शंस हैं ए एंड एफ, ई एंड एफ, ए एंड ई, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड ई। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए ये है, उसके लेफ्ट में डी बैठा हुआ है, सो इसका आंसर है डी। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं सी, जी, ई एंड डी, इसका आंसर है डी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई ये है, इसके लेफ्ट में जी है, और हमारे ऑप्शंस थे सी, जी, बी एंड ए, और इसका आंसर है जी। And here the video ends. I hope that I've explained very nicely that how can you solve the questions, the logical questions in which people sit in a circle. And I hope you liked this video. Thank you.